اور 21 آیت سے ہم آگے پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 15واں باب اور 21 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقوں کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی۔ نوٹس کریے گا، کنانی عورت ہے، پاکستانی عورت نہیں ہے، کنانی عورت۔ اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی، یہ بھی نوٹس کریے گا، اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بھی نوٹس کریے گا، وہ پکار رہی ہے اور خداوند یسوع مسیح جواب نہیں دے رہے۔ اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی اسی گھڑی شفا پا گئی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ کتنے لوگوں نے یہ حوالے کو اس سے پہلے زندگی میں سنا ہے، پڑھا ہے؟ آپ سب نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آج خدا آپ سب سے کچھ الگ طریقے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک حوالہ دیکھ کے آپ کبھی نہ سمجھیں کہ یسوع مسیح روڈ تھا یا یسوع مسیح غلط رویے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یہ یسوع مسیح صرف ایک حوالے میں تھوڑا سا خداوند یسوع مسیح کا رویہ سخت نظر آ رہا ہے، اس طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک حوالہ دیکھ کے ہم خدا کے بارے میں رائے نہیں قائم کر سکتے کہ خدا ایسا ہے۔ یہی خدا ہے جو انسان بن کے زمین پر آیا، یہی خدا ہے جس نے آپ کے اور میرے لیے صلیب کا دکھ سہا، یہی خدا ہے جس کے منہ پہ تھوکا گیا، جس کے گالوں پہ تماچے مارے گئے، جس کو ٹارچر کیا، یہ سب آپ کے اور میرے لیے کیا گیا۔ اس کے پاس جب بھی کوئی آیا ہے اس نے کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا ہے۔ ایک صوبے دار آیا، اس نے بولا میرے نوکر بیمار ہے تو یہیں سے بول تو وہ اچھا ہو جائے گا، اس نے نوکر کو اچھا کیا۔ اس کے بعد اس کو جو ملتا گیا وہ ہر ایک کو چنگا اور اچھا کرتا چلا گیا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسے خدا کے بارے میں ہم یہ بولیں صرف ایک حوالہ دیکھ کے کہ خدا روٹ خدا ہے یا یہ خدا جو ہے وہ تھوڑا سا اس حوالے میں سخت قسم کا نظر آیا۔ نہیں، یہ خدا پیار کرنے والا خدا ہے۔ کوڑی اس کے پاس آتے تھے اور وہ ان کو چھوتا تھا۔ اس زمانے میں کوڑیوں کو چھونا ناممکن تھا، کوئی نہیں چھو سکتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کوڑیوں کو چھوتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح مردوں کے پاس گئے اور ان کو زندہ کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو اگر پورا دیکھنا ہے تو پورا پھر دیکھنا چاہیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خدا جس کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، یہ روٹ نہیں ہے، یہ سخت نہیں ہے، بلکہ یہ رحم سے بھرا ہوا ہے، یہ پیار سے بھرا ہوا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے اس نے دنیا سے ایسی محبت کری کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا محبت ہے۔ تو اگر محبت کہیں سے فلو کرتی ہے نا، محبت کی کوئی سورس ہے، محبت کا کوئی نلکا ہے، تو وہ خدا ہے۔ تو خدا میں سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ ایسے خدا کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے کہ یہ روٹ خدا ہے یا یہ سخت خدا ہے۔ ہاللویا۔ جب بھی خدا اپنے کلام میں کچھ ایسی باتیں لکھواتا ہے نا، تو وہ آپ کی اور میری اسٹڈی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھ کے اس میں خدا نے کیا پیغام چھپا کے رکھا ہے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم وہ پیغام جان لیتے ہیں تو خدا ہمارے زندگی میں اس کلام کے سبب سے کام کرتا ہے۔ یہ عورت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک عورت ہے، کنانی عورت ہے، اور یہ کنانی عورت جو ہے سور اور سیدا کی سرحدوں سے نکلی ہے اور یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی ہے۔ اور جب وہ ملی ہے یسوع کو تو اس نے یسوع سے بولا کہ ایک عورت میری بیٹی کو ایک بدرو ستاتی ہے۔ یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاگردوں نے بھی بولا اس عورت کو فارغ کر، اس عورت کو واپسی لوٹا،
यीशु ने बोला कि जी मैं इसराइल के घराने की खोई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। फिर औरत ने खुद आके उससे रिक्वेस्ट करी, तब भी यीशु ने बोला कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना ठीक नहीं है। तो आज मैं इस औरत के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि जो कुछ इस औरत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि जा तेरे ईमान ने तेरी बेटी को चंगाई दी, और ऐसा बड़ा ईमान मैंने कहीं और नहीं पाया। उसकी वजह कुछ खास है, कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने देखी नहीं है, वो चीजें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि आपको इस औरत की जिद्दोजहद का पता चले। यहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हैं, बहुत सारी माएँ बैठी हैं, और जब माँ आ जाती है खुदावंद के सामने, या माँ और खुदा का इनकाउंटर होता है, तो फिर खुदा को झुकना ही पड़ता है। माँ में वो पावर है। कितनी माएँ यहाँ पे बैठी हैं? आपके बच्चों की जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो इस खुदा के पास जाए। ये खुदा माओं की को ना कर ही नहीं सकता। आपके बच्चे नशे में चले गए, आपके बच्चे सियासी तंजीमों में चले गए, आपके बच्चे आवारा फिर रहे हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ, आप खुदा के पास लेके आए। और मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ, खुदा माओं की पुकार को खुदा रद्द नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए देखते हैं इस औरत के सामने चैलेंज कौन कौन से थे। पहला चैलेंज इस औरत के सामने पता है क्या था? ये अकेली थी। कहाँ है इसका शौहर? कहाँ है? इस लड़की का बाप कहाँ है जिसको बदरू सताती है? इस तरह के मामलात जब होते हैं, घर में तकलीफ होती है, नॉर्मली होता क्या है कि बाप जो है वो भाग रहा होता है। जब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो हमने देखा है बाप जो है वो भाग रहे होते हैं, बाप अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं, बाप इधर उधर लेके जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये औरत का कोई शौहर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, इस लड़की का कोई बाप नजर नहीं आ रहा है। अगर बाप होता तो यकीनन वो इसको लेके जाते। इसका मतलब है या तो ये औरत बेवा है, ठीक है, या ये सिंगल मदर है। सिंगल मदर समझते? सिंगल मदर वो होती है जिसको उसके शौहर ने छोड़ दिया होता है। तो आज खुदा आप में से बहुत सारे लोगों से सबसे बात कर रहा है, लेकिन खुसूसन उससे बात कर रहा है जो औरत जिसका शौहर नहीं है या जो सिंगल मदर है। हालेलुया। आपको हो सकता है आपके जीवन साथी ने छोड़ दिया हो सकता है आपके पास कोई आपका भाई चाचा कोई और ना हो। अगर आप अकेले भी हैं ना, तो खुदा के लिए आप काफी है। हालेलुया। एक अकेली औरत काफी है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं नजर आता औरत का भाई यानी लड़की का मामू इसके साथ दौड़ रहा हो, लड़की का चाचा दौड़ रहा हो, कोई रिश्तेदार दौड़ रहा हो, कोई दादा नाना दौड़ रहा हो, नहीं, अकेली औरत है, बिल्कुल अकेली औरत है। और बाइबल बताती है ये सूर और सैदा की सरहदों तक गई है। आप जरा जाएं तो सही लाहौर की सरहद तक या पाकिस्तान की सरहद तक अकेले, पता चल जाएगा कि सरहद तक जाना कितना दूर है, कितने खतरे हैं। ये आज के दौर की बात नहीं है, उस जमाने की बात है जब जानवर भी खुले फिरते थे। ये औरत अपनी बेटी के लिए इरादा करके ठानी हुई थी कि उसने अपनी बेटी की शिफा को लेना है। उसके लिए मुझे सरहदों में जाना पड़े, उसके लिए मुझे किसी भी कोने पे जाना पड़े, मैंने अपनी बेटी की शिफा हासिल करके रहना। अगर ये इरादा रखते हैं, कोई भी आपकी जिंदगी में मसला है, चाहे बच्चों से रिलेटेड है, चाहे किसी और चीज से रिलेटेड है, चाहे माली परेशानी है, चाहे शिफा है, चाहे बीमारी है, कुछ भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, आप अगर इरादा कर लें इस औरत की तरह कि मैंने ये यीशु से लेना ही लेना है, वो देगा ही देगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। इस औरत को ये पता था मेरी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी के साथ जो प्रॉब्लम है वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई एलर्जी नहीं है, वो कोई वबा नहीं है। मेरी बेटी के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे बेटी को एक शैतान ने पकड़ा हुआ है।
हालेलुया। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ फैमिलीज ऐसी बैठी हो जिनके बच्चों को शैतान ने पकड़ा हुआ है। शैतान किस तरह पकड़ता है? शैतान ये नहीं है कि बदरू बन के अंदर घुस जाए। शैतान आपके बच्चों को इस तरह से पकड़ेगा कि आपके बच्चे आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे, चर्च से दूर होते चले जाएंगे, नशे में पढ़ना शुरू हो जाएंगे, सियासी तंजीमों में पढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको नजर आएगा ये बच्चा अब हाथ से निकलता जा रहा है और ये अपनी मौत की तरफ जा रहा है। शैतान इस तरह से काम करता है। कलाम में लिखा है हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई किससे है? जो आसमानी मुकामों पे ये तारीकी की ताकतें ये सारा कंट्रोल कर रही हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से। अगर आज आपको ये समझ में आ गया है कि मेरे घर में एक प्रॉब्लम है, हर एक के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कितने लोग समझते हैं मेरे घर में ये प्रॉब्लम है? अब आप जरा सा सोचें आपके घर में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इस औरत को ये बात बड़ी क्लियर बता दी कि मेरे घर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बीमारी नहीं है, कोई वबा नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि मेरे घर में ये है कि मेरी बेटी को एक बदरू ने चढ़ा हुआ। अगर आपको ये पता है कि आपके घर की प्रॉब्लम क्या है, आप सीधा अच्छे से दुआ कर सकती हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं दुआ कराने और बोलते हैं पास्टर जी दुआ करें। तो मैं उनसे पूछता हूँ किस लिए दुआ करूं, क्या चीज के लिए दुआ करूं? तो वो कहते हैं कि बस ऐसे ही दुआ करते हैं। मतलब उनको यही नहीं पता कि उन्होंने दुआ क्या करवानी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम खुदा के पास जा रहे हैं तो मैंने दुआ क्या करानी है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम माली प्रॉब्लम है तो आप माली प्रॉब्लम के लिए दुआ कराएं। अगर आपकी जिस्मानी प्रॉब्लम है तो जिस्मानी प्रॉब्लम के लिए दुआ कराएं। जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आपने दुआ करानी है, आप सबको पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम का मकसद क्या है। बाज़ दफा में प्रॉब्लम ही नहीं पता चलती है कि प्रॉब्लम क्या है। घर में बीमारियां हुई हैं, लोग टेंशन में पड़े हुए हैं, लोग परेशान पड़े हुए हैं और वो बोलते हैं पास्टर साहब परेशानी बड़ी है, इसके लिए आप दुआ करें। पास्टर साहब सारा दिन दिमाग चलता रहता है। सारा दिन दिमाग क्यों चलता रहता है? सारा दिन दिमाग किस लिए चलता रहता है? वो सोचने वाली बात है। दिमाग इसलिए चलता है कि घर में पैसे नहीं है, दिमाग इसलिए चलता है कि रेंट देना है, दिमाग इसलिए चलता है कि बच्चों की फीस देनी है, दिमाग इसलिए चलता है कि मेरे बेटे की जॉब नहीं है, दिमाग इसलिए चलता है कि बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, दिमाग इसलिए चलता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए दिमाग चल तो रहा है, लेकिन चल किस वजह से रहा है। आपको जड़ पता होनी चाहिए कि इसकी जड़ क्या है, ये प्रॉब्लम की असल वजह क्या है। तो असल वजह जब आपको पता चलेगी तब आप खुदा के पास आए। समझ आ रहा है? माएं समझ रही हैं, बाप समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि बेटी की शादी नहीं हो रही, परेशानी है। लेकिन हम परेशानी की दुआ नहीं करें, हम किसकी दुआ करें? जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दिमाग आपका रुक नहीं रहा। तो इस औरत को यह पता था कि मेरे घर में एक शैतान आ गया है और इस शैतान के लिए मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इस शैतान को निकाले। कनानी औरत थी, मैंने एक दफा फिर पढ़वा दिया, कनानी औरत थी और कनानी औरत इस्राएल के खुदा को नहीं मानते। सुन रहे हैं? ये दूसरे मजहब वाले हैं, इनका इस्राएल के खुदा के साथ कोई अहद नहीं है। ये इस्राएल के खुदा को नहीं मानते, ये अपने मंदिरों में जाते हैं, अपने इबादत खानों में जाते हैं और इनके हजारों लाखों इनके देवता होते हैं। कितनी दफा हो सकता है ये औरत गई हो अपने देवताओं के पास? कितनी दफा ये औरत अपने खुदाओं को पुकारा हो? कितनी दफा हो सकता है इसने ट्राइयां करी हो? हर जगह से इसको कोई जवाब नहीं मिला। आपकी हर परेशानी का हल सिर्फ यीशु मसीह। ध्यान में रखें, आपकी परेशानियों का हल कोई बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं है, आपकी परेशानियों का हल कोई सियासतदान नहीं है, आपकी परेशानियों का हल कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपके बेटे को जॉब दिला देगा या आपकी बेटी से शादी कर लेगा। आपकी परेशानियों का हल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जब इसको ये समझ में आई है कि मेरे खुदा मेरे देवता काम नहीं कर सकते हैं,
तो इसने जानना शुरू किया कौन है जो मुर्दों को जिंदा करता है, कौन है जो बदरूहों को निकालता है, कौन है जो बीमारों को शिफा देता है। ये यीशु की मिनिस्ट्री का बीच का टाइम था। यीशु मसीह सारी जगह में फेमस थे, सारे लोग एक जगह जमा होते थे, तो शहरों शहरों से लोग यीशु के पास जमा हो जाते थे। आप लोग सुन रहे हैं मेरी तरफ? सब जगह से लोग यीशु के पास जमा होते थे। यीशु के नाम को हर कोई जानता था। किसी ने इसे बताया होगा, तेरे पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ एक ही है, तू यीशु मसीह को ढूंढ। यीशु मसीह को ढूंढ। अगर तूने उसको ढूंढ लिया तो तेरी बेटी आजाद हो जाएगी। हालेलुया। तो कितने चैलेंज मैंने आपको बताया। पहला, कोई मर्द इसके पास नहीं है। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज क्या है? सरहदों तक अकेली चली गई है। तीसरा चैलेंज क्या है? हाँ, दूसरा मजहब से ताल्लुक है इसका। खुदा के साथ अहद में शरीक नहीं है। इस्राएल की बेटी नहीं है ये अब्राहम की बेटी नहीं है, कनानी औरत है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि इसने यीशु के बारे में जानना शुरू किया। यीशु के बारे में जानना शुरू किया। लोगों ने बताना शुरू किया कि यीशु जो है फला तारीख को इतने बजे सूर और सैदा की जगह में से निकलेगा। अगर उसको इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलती, क्या ये यीशु तक पहुंच सकती थी? बताइए, मेरी तरफ देखिए, आप लोग कहीं और इधर उधर खोए हुए। अगर इसको यीशु के बारे में इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलती तो क्या ये यीशु तक पहुंच सकती थी? तो इसका मतलब है सही इंफॉर्मेशन यीशु के पास ले जा सकती है। आज दुनिया में बहुत सारे चर्चेस हैं, लेकिन सही इंफॉर्मेशन सारे चर्चेस नहीं दे रहे। कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बोल रहा है यीशु खुदा का बेटा नहीं है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन होता क्या है, अगर सही इंफॉर्मेशन लेंगे तो एक दिन आप यीशु के सामने खड़े हो। हालेलुया। इस औरत ने सही इंफॉर्मेशन लेना शुरू करी। लोगों ने इसे बताया फला टाइम को इतने बजे यीशु मसीह यहाँ से गुजरेगा और जाकर उसको पकड़ लेना। और ये औरत उस टाइम पे, बिल्कुल ठीक टाइम पे, ये उस जगह पहुंच गई जहां पे यीशु था और यीशु मिल भी गया। और जब यीशु मिल गया है तो पहली प्रॉब्लम इस औरत के सामने क्या आई है? बड़े ईमान। कितने लोग समझते हैं ये ईमान से अपने घर से निकली है ईमान से? जब सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई है, इसने ईमान का स्टेप उठाया, ईमान का कदम उठाया। इसने बोला अब मैं वापस आऊंगी तो शिफा लेके आऊंगी, ऐसे नहीं आऊंगी। बड़े ईमान का सफर इसने शुरू किया। सरहदों तक पहुंच गई। सरहद तक पहुंच के यीशु भी मिल गया, शागिर्द भी मिल गए, सारी चीजें इसके हिसाब से ठीक हो गई है। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु को पुकारने लगी तो यीशु ने जवाब ही नहीं दिया। सुन ले एक दफा फिर क्या लिखा हुआ है। और देखो, कनानी औरत सरहदों से निकली, पुकार कर कहने लगी, खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। मगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया।